দেশৰ প্ৰত্যেকটো লোকসভা সমষ্টিৰ দৰে আজি ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সংবাদমেল। স্থানীয় আবৰতাম প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মোদী চৰকাৰৰ 9 বছৰীয়া কাৰ্যকালত হোৱা জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ লগতে দেশ বিদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত বিশেষকৈ সংবাদমেলত অসম বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মাই বিস্তৃতভাৱে ব্যক্ত কৰে। আজি এই সংবাদমেলত পৱন শৰ্মাৰ উপৰিও বিজেপি কোৰ কমিটিৰ মেম্বাৰ তথা কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰভাৰী বিজয় গুপ্তা, অসম বিজেপিৰ মুখপাত্ৰদ্বয় পংকজ বৰবৰা আৰু মানস ডেকা, কাৰ্বি আংলং বিজেপিৰ সভাপতি ৰণেল কিনিঙৰ লগতে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ নন্দিতা গাৰ্লছাৰ লগতে দুই বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং, দৰসিং ৰংহাং উপস্থিত থাকে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও লৈ পেলাই আমাৰ লোকসভা ভিত্তিক আমি এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব বিচাৰিছো। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেশ্যনেল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা, ষ্টেট কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে প্ৰত্যেক লোকসভা ভিত্তি আমাক প্ৰেছ কনফাৰেন্স পাতিব দিছে। কাৰণ যোৱা এই 9টা বছৰ কালত, যোৱা 2014 চনৰ পৰা আজি ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বত 2014 চনৰ পৰা আজি 9 বছৰ আজি পাৰ হ'ল। সেই কালত আমি 9 বছৰ কালত আমি ভাৰতীয় সেৱা কৰিছো, চৰকাৰ আমি ভালকে চলাইছো, সুশাসন চলাইছো। ঠিক তেনেকৈ আমি গৰীব কল্যাণৰ কাৰণে আমি বহুত আঁচনিবিলাক আজি গৰীব ৰাইজৰ কাৰণে, অন্তদয়াবিলাকৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ আমাৰ নেশ্যনেলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তথা আমাৰ অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সহ প্ৰভাৰী পৱন কুমাৰ শৰ্মা, তেখেত পৱন কুমাৰ সবৰ আগত চিনাকি কৰিব দিছে। পৱন শৰ্মাজী, তেখেত মোৰ ঘৰ হৈছে দিল্লী, আগত দিল্লী তেখেত MLA আছিলে, এক্স MP আছিলে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ মাজত অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু পূব কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সহ প্ৰভাৰী আমাৰ নন্দিতা গাৰ্লছাৰ চবেই জানে। আমাৰ মাজত উপস্থিত সাংসদ, এই ডিফু লোকসভা সাংসদ আমাৰ হৰেণ সিং ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ, চবেই জানে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সিনিয়ৰ মোষ্ট আৰু অসম প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কোৰ কমিটি মেম্বাৰ আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰভাৰী আমাৰ বিজয় কুমাৰ গুপ্তা ডাঙৰীয়া। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তথা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ সহ প্ৰভাৰী আমাৰ পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়া আৰু স্পক্স পাৰ্চন। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ বিধায়ক আৰু এই ডিফু সমষ্টিৰ বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধায়ক আৰু হাওৰাঘাট সমষ্টি বিধায়ক আমাৰ দৰসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া, চবে চিনি পায়। তাৰ মাজত আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কনভেনৰ আমাৰ দেৱান ধ্ৰুৱ জ্যোতি মৰাল ডাঙৰীয়া, তেখেত হৈছে মেইন আমাৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কনভেনৰ, আৰু মই নিজে ভলেণ্টাৰী ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ছেক্ৰেটাৰী, ষ্টেটৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু স্পক্স পাৰ্চন আমাৰ মানস ডেকা ডাঙৰীয়া। আৰু আজি উপস্থিত এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আমাৰ সকল আছে, ডেপুটি চেয়াৰমেন আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ অফিচ বেয়াৰ্ছো আছে। তো
আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত গোটেই কথাবিলাক আমাৰ নেশ্যনেলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আৰু অসম প্ৰদেশৰ সহপ্ৰভাৰী আমাৰ পৱনজী তেখেতক কেনেবাৰ কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ সাংসদ থাকিব, আমাৰ নমিতা বাৰ্ডী থাকিব, মন্ত্ৰী, তাৰপিছত MLA থাকিব, তাৰপিছত আমাৰ জিলা সহপ্ৰভাৰী নামৰ थैंक यू। और स्वदेशी के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर 9 वर्षों में सब चीजों को मंगवाया जाता है, यानी हमारे आर्मी जितना भी हमारा आर्मी का जो सामान है, हमारे सैनिकों का वो है, वो छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों को भी हमें विदेशों की तरफ देखना पड़ता था। परंतु इन 9 वर्षों में हमने जहाँ सीमाओं को सुरक्षित किया है और सीमाओं को सुरक्षित के साथ साथ में जो पड़ोसी देश अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं खड़ी करते थे, उनका अगर आज उदाहरण अगर आप देखें, जब उन्होंने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की, हमने सीमा पार करने में कोई संकोच नहीं किया। हमने वहां जाकर हमारे शहीदों सैनिकों का बदला लेने का काम भारत की हमारी सैनिकों हमारी आर्मी ने किया और हमारे प्रधानमंत्री जी सब उसकी देख रहे हैं, किस प्रकार से वो चल रहे हैं, उसका सीधा प्रसारण उन्होंने अपने आंखों से देखा। और उसके साथ में जब हम आर्थिक दृष्टि से पांचवें नंबर पर खड़े हैं, ब्रिटेन को पीछे करके खड़े हैं, दूसरी तरफ अगर देखेंगे पड़ोसी देश कल तक जो आंखें दिखाता था, आज आप अनुभव करेंगे वो कटोरा लेकर दुनिया के सामने घूम रहा है और हालात इस प्रकार की हो गई है कि उसको कोई उसका उसकी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत जहाँ स्वदेशी के आधार के ऊपर पनडुब्बी से लेकर हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर जो हमारी सेना में काम आने वाली जो चीजें हैं, उन सब चीजों को और समुद्री हमारी सुरक्षा को लेकर हमने सब चीजों का निर्माण करने का जो काम है, वो हमारे स्वदेशी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो जिसको हम कहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, उन सब के माध्यम से उन सारे कामों को करने के लिए हम देश के सामने उस प्रकार का एक जिस प्रकार से हमने कहा कि केवल दुनिया के से सामान मंगवाया जाता था, भारत सब जगह निर्यात करने के साथ साथ में हम कई बार अपने देश के बारे में अनेक प्रकार की गौरव गाथाएं की चर्चा करते हैं समय समय पर, परंतु आप इन 9 वर्षों में अनुभव करेंगे कि जहाँ तिरंगा का सम्मान पूरे देश के अंदर, अभी 15 अगस्त को भी आपने अनुभव किया होगा, हमने हर घर के ऊपर हमने तिरंगा लगाया। लेकिन ये तिरंगा जो है ना केवल भारत में नहीं है, आज दुनिया के देशों में जब यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उस समय पूरे दुनिया के जो छात्र छात्राएं या व्यवसायी लोग वहां पर किसी कैसे युद्ध से निकला जाए, किस प्रकार से सुरक्षित पहुंचा जाए, भारत पहला देश था जिसने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की। और मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि जिसके हाथ में भी तिरंगा था, जो देश के दुनिया के किसी भी देश के नौजवान के हाथ में था, वो सुरक्षित अपने देश में पहुंचा। अगर इस प्रकार की हमारे देश के बारे में जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो ताकत है, हमारे जो तिरंगा के जो सम्मान करते हैं, पूरे दुनिया ने इस प्रकार का उसको किया, उसका परिणाम भी आपने अनुभव किया होगा। और मित्रों, मैं बहुत सी चीजों को अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बहुत सी चीजों की मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जैसे हमारी राज्य सरकार ने अनेक प्रकार की योजना के माध्यम, जैसे हमारी कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो शादी नहीं करती या कुछ विधवा हो जाती हैं, अरुणोदय के माध्यम से उनका 1250 रुपये उनके घर तक पहुँचते हैं और उनके सीधे खाते में पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा उसको बढ़ाने का काम सरकार सोच रही है। ऐसे बहुत सी योजनाओं को एक अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि समय लगेगा, परंतु मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको प्रारंभ से उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों को स्वच्छ भारत, यानी उस समय किसी को लगा स्वच्छ भारत का ये क्या है, आज हम देखते हैं पूरे देश में, यानी आपके साथ अगर आपका छोटा बच्चा बैठा हो और आप गाड़ी से कुछ कचरा फेंकना चाहते हो तो आपके ध्यान में आए या ना आए,
लेकिन छोटे बच्चे को जरूर ध्यान में आता है कि नहीं पापा यहाँ नहीं, कहीं दूसरी तरह डालना है। ये पूरे देश में है। और आपने रेलवे के बारे में चारों तरफ से इस प्रकार से रेलवे के माध्यम से पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट में, मुझे लगता है कि मिजोरम में भी शायद अगले वर्ष 2023 तक मणिपुर में उसमें सब जगह हमारी रेलवे का काम हो जाएगा और एयरपोर्ट का भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही इन 9 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और आयुष्मान भारत के साथ साथ में जो जन औषधि का जो पक्ष है, अभी शायद उसका इतना प्रचार नहीं हुआ, परंतु जो 400 रुपए की 500 रुपए की जो मेडिसिन आती थी वो 30 रुपए में 40 रुपए में सामान्य वो मिल जाती है और वो वही काम करती है जो एक महंगी दवाई करती है। ये ताकि कोई बीमारी के कारण से, महंगी दवाई के कारण से कोई ऐसा ना हो कि वो दुकान तक पहुंच ना पाए और मेडिसिन उसको मिल ना पाए। एक छोटे से छोटे चीजों के पक्ष को सोचकर प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में ऐसे नहीं लोग उनको कहते हैं, अगर आप वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बॉस हैं, ये कोई साधारण बात नहीं, अभिमान है हम लोग। दूसरे देश के हमारे जो उस प्रकार के रहते हैं तो वो सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं। मेरा आशा ही पूर्ण भरोसा है कि भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में भारत की तस्वीर दुनिया के सब देशों से मजबूत होगी। भरोसे और विश्वास के साथ में इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से काम हुआ, उसके दृष्टिकोण से आज सब आप लोगों को, मित्रों को हमने आपके समक्ष उस विषय आपको बुलाकर बताने की बात थी तो हमने रखे। हमारे बीच में हमारे सांसद साहब बैठे हैं, फिर भी कोई चीज आप लोगों को पूछना है तो ध्यान में करना है तो आपको सादर आमंत्रित है। परंतु आप जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चल रही है और उस योजनाओं का लाभ सीधा जो लोगों को मिल रहे हैं, वो आपके माध्यम से भी लोगों के पास में पहुंचे, इसी विश्वास के साथ में आपसे मिलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका पैसा यानी कुल मिलाकर जो सरकार के जो कदम उठे, प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टता है, उसमें से बिचौलियों का किसी प्रकार से जो आतंक रहता था, उसको साफ सुथरी सीधी नीति के आधार के ऊपर उनके खातों में, उनकी जो आवाज आ रही है, उनके खाते में सीधा उनका पैसा पहुंच जाए, ये सरकार का जो एक ऐसी व्यवस्था करने का काम किया जो 65 साल के उस काल से जो चीजें चल रही थी उनको तोड़कर सीधा आर्थिक दृष्टि से जो उनको उनका अधिकार है उनकी तक पहुंचने का काम सरकार के माध्यम से किया है। आप बोला है आपका जो आपका गवर्नमेंट ने जो किया वो तो हम लोग सुन लिया, लेकिन महंगाई के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? और जो एम्स हुआ, मेडिकल कॉलेज, अब ठीक है सब हो गया, लेकिन जो जीवन दायिनी जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का प्राइस 10% मंथली बढ़ जाता है, उसी का बारे में आप लोग क्या बोले? प्राइस राइज भी एक प्रॉब्लम है हार्ड। देखिए, आप केवल अगर एक पक्ष के बारे में विचार करेंगे, आपको इस कोरोना के कारण से पूरे दुनिया का, हम लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये दुनिया के देशों में जो अपने आप को विकासशील देश कहते थे, अमेरिका की स्थिति कैसी है, बाकी देशों की स्थिति कैसी है, उसका जब आकलन करेंगे तो भारत कहां पर खड़ा हुआ है। भारत अपनी चीजों को लेकर और जो महंगाई को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में रोका। इसके कारण से कुछ चीजों को हम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों के साथ साथ में उन देशों में महंगाई की किस गति से बढ़ी है और हम आकर वहां किस प्रकार से उस महंगाई को रोका। एक आपने जन औषधि के बारे में जो बात कही है, देखिए क्या है कि धीरे धीरे करके इस योजना को वो अच्छी मजबूती के साथ में फलीभूत हो, बाकी सब चीजें हो, जिस बात को आपने संकेत किया है उसका एक उस
कुछ ऐसा होता है, कुछ मेडिसिन जो महंगी होंगी, बहुत महंगी होंगी, वो जब मार्केट में आती है उसका थोड़ा कीमत अपने को लगता है उस कीमत के आधार पर नहीं है। परंतु अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि ये एक ऐसा सरकार का पक्ष है जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच कर पाए। और आपने बात कही है, फिर भी अगर इसमें से कुछ चीजें होंगी तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे। परंतु जहाँ तक महंगाई का और बाकी चीजों का है, तो आपको आंकलन करना है तो दुनिया का करियर, उसके आंकलन के हिसाब किताब से भारत की स्थिति कैसी है, तो एकदम आपको ध्यान में आएगा कि भारत कितने मजबूती के साथ उस महंगाई को रोके थे। और एक बात मैं तरफ से एक मिनट मैं और आपको सब पूछूं 2014 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया था, सब देशवासी ने, हम लोग सब लोग ने आप लोग को वोट दिया है। उस टाइम में एक आप लोग का जो मैनिफेस्टो है वहाँ पे भी था हर साल 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देगा। अभी तक तो 9 करोड़ होने को चाहिए, वो तो हुआ नहीं। उसका बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें देखिए क्या है। ডিফুৰ পৰা হালিমা বেগমৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ 24x7।